Hello, hello, हेलो। hello. हाँ जी। Rita ma'am, हाँ जी बेटा। can we start? हाँ जी हाँ जी। Okay ma'am, thank you. Okay. आप इंट्रोड्यूस करेंगे, मैं अपने को इंट्रोड्यूस करूँ, कैसे होगा? Ma'am, I'm doing. Thank you so ओके much. ओके। A very good afternoon, everyone. I, Tinu Anand, on behalf of Geeta Ratan International Business School, take this opportunity to welcome you all on virtual platform of management webinar on topic positive thinking, a mantra for success. Geeta Ratan International Business School was established in year 2004. It is affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi, and is approved by All India Council for Technical Education, Ministry of HRD, Government of India for technical courses, and Bar Council of India for law courses. The institute is accredited as Category A by NAC and assessed as Category A plus by State Fee Regulatory Committee, a fee committee of Government of INCITY of Delhi, and rated highest grading A by Joint Commission Committee of Government of INCITY of Delhi and GGS IP University. The institute has been rated Grade A by Academic Audit Cell of GJS IP University for consecutively for past 5 years. Gibbs has been rated number 2 by Times B School Survey 2018-19. The institute conducts postgraduate courses of MBA, MBA International Business, MCA Integrated, and undergraduate courses of BBA, BBA LLB, BBA, BA LLB. Positive thinking. Positive thinking, or we can say optimistic attitude, is the practice of focus on good in given situation. It can have a great physical and mental health. That is while dealing with anything good or bad, there should always be one expectation that things will go well. It is your there is one of the old saying, say, is your glass is half empty or half full? But it is really impactful, isn't it? This exact framework of mind depicts your attitude, optimistic or pessimistic one. This is not limited from a mindset perspective, but also it affects the health in a very impactful way. This management webinar aims to enable the attendees to set the right base of carrying a positive thinking mindset for the life and the key elements to get rid of all those negative thinking and how we can develop a mindset to enable and prepare our mind for positive thinking. To address our attendees today, we are glad to have retired Lieutenant Rita Gangwani amongst us, who is a motivational speaker, TEDx speaker, above all, who understands exactly what is holding you back from the true success and how you overcome these inner blocks. Ma'am has trained and motivated employees of many Fortune 500 companies, to name a few: Audi, GSPL, Nippon Steels, PBR, RBS, MDI, and many more. Due to her great work, she is honored by prestigious award, to name a few: honored by World Book of Records, Rajiv Gandhi Lifetime Achievement Award, National Award by Journalists Association of India, and many more. She's a founder of RIG House, that is Rita Gangwani's House of Personality Transformation. It is our pleasure to have you today with us, ma'am. We welcome you. थैंक यू थैंक यू। Thank you, ma'am. Ma'am, you are requested to please uh, begin with the session. ओके And ओके। over to you, ma'am. Over to you. Thank you so थैंक much. यू थैंक यू। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई सी देयर आर 51 students in the room, and I just heard your ma'am speak, and ma'am ने कहा कि ग्लास कभी आधा है या फुल है. For some people it's half and for some people it's full. Full. But how I look at this situation,
आई से एटलीस्ट ग्लास तो है, ग्लास में पानी तो है, दैट इज व्हाट मैटर्स. आधा है या पूरा है, it doesn't matter. So it's how you look at life which matters, you know. Because if you start counting little things कि उसमें आधा पानी है, उसमें ज्यादा पानी है, comparisons में लगेंगे जिंदगी में, तो you will never be ever be able to be happy. So to be happy, there are a lot of things you have to take care of. So coming back to the topic is positive thinking. And a lot of people think और बोलते भी हैं कि why positive thinking? Why should we talk about positive thinking? It's that, you know, भगवान ने हर चीज ड्युअलिटी में रखी है इस दुनिया में. जैसे अमीर के लिए बादाम है तो गरीब के लिए मूंगफली होगी, अगर रात है तो दिन है, काला है तो सफेद है, दुख है तो सुख है. सो देयर इज एन अपोजिट इक्वल थिंग जो ड्युअलिटी में भगवान ने इस दुनिया में रखी है. Similarly, you would see that even when you have electricity, there is a positive charge and there is a negative charge. And what are thoughts? Thoughts are also a kind of a energy. It's also a kind of an electricity, you can say, but not that kind of electricity, but a different kind of vibrational, magnetic energy, which also has two different rods attached to it, the positive one and the negative one. And क्योंकि negative बड़ा आसान होता है, so we always move towards the negative one and we do not pay attention to the positive one. And many a times जिंदगी में कुछ हो रहा है और बार बार अगर वो हो रहा है तो we always think कि जी जिंदगी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल negative है, it's not worth living. You feel like a loser, you feel that you have failed, you feel guilty, and then you give up on achieving anything in life because your total focus is on something which has happened again and again, and you forget कि दूसरी साइड भी है. हर कॉइन का दूसरा साइड होता है, but we are only looking at one coin. Or there is another saying कि when God closes the door, he opens another. बट हम क्लोज डोर के सामने खड़े होके इतना उसको धक्का मार रहे होते कि खुले, कि हम एफर्ट ही नहीं करते कि हो सकता है साथ में कोई खिड़की हो, कोई रोशनदान हो, कोई और दरवाजा हो जो खुल जाएगा. और कई बार वो खुला होता है, हम लोग पुश भी नहीं करते देखने के लिए whether it is open or not. So today what I'm going to talk to you is nothing very scientific. मैं कोई scientific बात नहीं कर रही हूँ. Neither I'm going to talk to you like a psychologist, because मैं बात करूंगी आपसे like a common man. जिंदगी के बारे में हम बात करेंगे. And I hope whatever I share with you would inspire you to think what I'm going to talk about and create a balance between the positive and the negative energy which we carry with ourselves in life. So I'll begin today's session with a very simple question which always confuses everyone. मेरे को भी इसने question ने बहुत confuse किया था. And a lot of people ask this question कि जिंदगी क्या है. And even when I go to a seminar somewhere, मैं उनसे पूछती हूँ जिंदगी क्या है. And students जो बैठे होते हैं, they start coming up with a very different, everybody has a different statement. कोई कहता है जिंदगी दौड़ है, कोई कहता है जिंदगी फन है, कोई कहता है जिंदगी मुसीबत है, कोई कहता है जिंदगी एक जर्नी है. Everybody has a different statement or a definition कि जिंदगी है क्या. So I was confused कि हर कोई बोलता है जिंदगी ये है, तो जिंदगी actually है क्या. So what happened was that I managed to meet a spiritual guru who's quite enlightened, and I put this question to him. I said, Guruji, एक सवाल का जवाब चाहिए. बहुत confusion है, बहुत अलग अलग definitions आती हैं. So जिंदगी क्या है? And he smiled and he said, बेटा क्या कभी आप कब्रिस्तान गए हैं? That is a cremation ground. I said, हाँ जी मैं गई हूँ. बोले आपने देखा होगा ज्यादातर वहाँ पे एक समाधि होती है. हाँ जी मैंने कहा होती है. बोले उसके ऊपर नाम लिखा होता है इंसान का जिसकी वो समाधि है. बोले हाँ लिखा होता है. बोले उसमें देखो नीचे अच्छी से देखो, उसमें लिखा होता है वो किस दिन पैदा हुआ और किस दिन वो गुजर गया. मैंने कहा हाँ जी लिखा होता है. बोले और गौर से देखना, जिस दिन वो पैदा होता है, जिस दिन वो पैदा हुआ बर्थ डेट, उसके बीच में आता है डैश और फिर आती है उसकी डेथ डेट. एंड ही सेड बेटा मेरे हिसाब से जिंदगी इज नथिंग बट द डैश in between birth and death. Life is nothing but a dash between birth and death. और इस डैश को लोग अलग अलग तरीके से जीते हैं. कोई लोग रो रो के इस डेथ को, इस डैश को जीते हैं. कुछ लोग
मैनेज करते हैं इस डैश को खुशी खुशी जीने का, बिकॉज ये डैश देखने में सीधा है बट ये सीधा कभी नहीं रहता. लाइफ ऑलवेज गोज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. जैसे एक ईसीजी होता है, लाइफ ऑलवेज गोज लाइक दैट. आप खुद अपनी जिंदगी में झांक के देखिए, कभी स्ट्रेट लाइन में अगर लाइफ चले, दैट मीन्स लाइफ इज डेड, देयर इज नो लाइफ. सो लाइफ अगर है तो अप्स एंड डाउन जिंदगी में आते ही रहेंगे. कोई पीक्स बहुत ऊंची चली जाती हैं, कोई पीक्स बहुत नीचे चली जाती हैं, बट ये होगा एंड इट इज एक्सपेक्टेड बिकॉज दैट इज द इंडिकेशन कि हम जिंदा हैं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस डैश को तो हमें जीना ही है, तो क्यों ना खुशी खुशी इस डैश को जी ले. रिमाइंड्स मी कि मैं जब छोटी थी तो आई लॉस्ट माई मदर एट अ वेरी यंग एज, और ज़्यादातर मैं हॉस्टल्स में पढ़ी. और जब मेरे शादी हुई तो एक्सपेक्ट किया जाता था कि मैं खाना बनाऊं, मैं रोटी बनाऊं, जो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं बनाई थी, मुझे आती भी नहीं थी. और मुझे कोई बोलता था कि खाना बना ले तो मुझे बुखार चढ़ जाता था कि खाना बनाना पड़ेगा. ओ माय गॉड. पर एक दिन मैंने सोचा कि रीटा, चाहे तू हंस के बना चाहे तू रो के बना, तुझे खाना बनाना तो पड़ेगा ही. तो रो के बनाने से अच्छा है कि हंस के बना ले. एंड व्हेन आई चेंज माय एटीट्यूड कि हाँ भाई खाना अगर तुझे बनाना ही है तो हंस के बना ले, तो देन वंस आई चेंज माय एटीट्यूड, मैंने फिर खुशी खुशी खाना बनाना शुरू कर दिया. एंड इवेंचुअली आई स्टार्टेड एंजॉयिंग मेकिंग द फूड, and then everybody started appreciating the food because the kind of vibrations I was putting, happy vibrations. आप खुद घर में देखो, आप अपने काम वाली को बोलो खाना बना दे, वो खाना बनाती है. आप रोज 2 रोटी खाते हो, आज आपको ज्यादा भूख लगी है, आप उसको आवाज देके कहते हो 1 रोटी और दे दे, कैसा मुंह बनाएगी देखना. सो जो वाइब्रेशंस खाने में जाती है वैसा ही खाना हमारे पे असर करता है. सो सिमिलरली जब मैंने खुशी खुशी खाना बनाना शुरू किया विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, विद अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन एंड हैप्पीनेस, वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलने शुरू हुए विच एनकरेज्ड मी टू लर्न कुकिंग. एंड देन आई इवेंचुअली बिकेम अ ओके टाइप गुड कुक. आई मीन आई एम नॉट अ बैड कुक एनीमोर. सो जिंदगी में एज आई सेड अप एंड डाउन आते ही होंगे. अगर मैं आपसे कहूँ, आई एम गोना आस्क यू समथिंग, अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ, या आपके आप जो इस वक्त दिमाग में कोई भी चीज चल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू लिसन टू योर थॉट्स. आप अपने थॉट्स को जरा 2 मिनट सोचिए. इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? आप सब सोचिए इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं. सो नाउ you tell me that what thoughts fill your head. Are they positive or are they negative? चलो, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया वो किया. अब मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ कि अगर आप एक पार्टी में एंटर करते हैं और जहाँ पे आपके फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, एंड दे सडनली वो चुप हो जाते हैं और आपको लगता है कि समथिंग टेरिबल हैज हैपेंड, और जैसे आप एंटर करते हैं और आपके फ्रेंड्स एकदम पर्क हो जाते हैं, एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, तो आप मुझे बताइए कि व्हाई डिड दैट हैपन? क्यों पार्टी में एंटर करते आपको लगा कि वो दुखी दिख रहे हैं, चुप हो गए हैं, या एंटर करते आपको लगा कि वो खुश हो गए हैं आपको देख के? वो इसलिए बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फ्रेम ऑफ माइंड. क्योंकि आप जैसा फील कर रहे होंगे आपको बाहर की दुनिया भी वैसे ही दिखाई देगी. इफ यू आर फीलिंग हैप्पी, इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, तो आपको आसपास में कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस नजर आएगा. बट इफ यू आर फीलिंग लो, इफ यू आर फीलिंग लिटिल लेट डाउन, तो आपको चारों तरफ नेगेटिविटी ही दिखाई देगी. एंड एज आई सेड, इट्स ऑल योर फ्रेम ऑफ माइंड. सिचुएशंस हमेशा न्यूट्रल होती हैं, हर सिचुएशन जिंदगी में न्यूट्रल होती है. इट इज अवर रिएक्शन जो उस सिचुएशन में हम देते हैं, that makes it either a positive or a negative. In other words, you can say your reaction is your attitude. आपका attitude क्या है, that depends कि situation positive रहेगी या ये situation negative रहेगी. अगर positive situation रहेगी तो it will have a fulfilling effect on people. नेगेटिव रहेगी तो आप खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे, बहुत ही परेशान हो जाएंगे. तो ये जो फीलिंग आई, ये जो उस टाइम आपके मन में फीलिंग आई अबाउट द सिचुएशन, वो क्या थी? वो फीलिंग थे आपके विचार. विचारों को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं थॉट्स. तो जो थॉट्स, जो विचार आपके दिमाग में चल रहे थे, अकॉर्डिंगली यू आइडेंटिफाइड द सिचुएशन एज पॉजिटिव
और नेगेटिव। सो अभी पहले हम समझेंगे कि थॉट्स होते क्या हैं, व्हाट आर थॉट्स। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि थॉट्स इज अवर मेंटल कंडीशन, हमारी मेंटल कंडीशनिंग हुई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गिटार उठाते हैं म्यूजिक बनाने के लिए, तो आपको पहले उसको ट्यून करना पड़ता है, गाने के हिसाब से ट्यून करना पड़ता है। अगर वो ट्यून्ड नहीं है, मतलब किसी और ने उसको ट्यून करके रखा हुआ है और आप उसको अपने गाने में बजा रहे हैं, तो म्यूजिक तो बजेगा लेकिन वो मैच नहीं करेगा आपके गाने के साथ, तो इट विल नॉट साउंड वेरी प्लीजिंग टू द ईयर्स। So similarly, what are thoughts? Thoughts are our mental conditions, our ideas, our opinions, our beliefs about ourselves and about the world around us. हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और आसपास की दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, इसको सोचते मतलब विचार है क्या उन चीजों के बारे में मेरे दिमाग में वर्ड्स आते हैं, डायलॉग्स आते हैं, दैट इज व्हाट इज अ थॉट। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्ग लिव थॉट, अगर एक विचार काफी दिनों तक हमारे दिमाग में चलता रहे, तो वो हमारा बन जाता है एटीट्यूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो पहले बताऊंगी वो ये है कि ह्यूमन ब्रेन ना शब्द नहीं समझता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहती हूँ थिंक ऑफ अ टेलीफोन, तो आपकी आंखों के सामने टेलीफोन की एक तस्वीर नजर आएगी, एक फोटो नजर आएगी। आप TELEPHO लिखा हुआ नहीं देखेंगे, आपकी नजरों के आगे एक तस्वीर नजर आती है। सिमिलरली, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि शाम को मेरे घर में पार्टी है, एनिवर्सरी है एंड यू आर इनवाइटेड, आपके पास एक इनविटेशन कार्ड आता है, तो इनविटेशन कार्ड पढ़ने के बाद सबसे पहला विचार आपके दिमाग में ज्यादातर यही आता है कि मैं क्या पहन के जाऊं। और जैसे आप सोचेंगे मैं क्या पहन के जाऊं, आपका दिमाग आपको आपके कबर्ड की तरफ ले जाएगा और आप अपने इमेजिनेशन में अपने कबर्ड में से वो ड्रेस ढूंढेंगे कि मैं ये पहन के जाऊंगा, अच्छा काली कमीज पहनूंगा, ब्लैक ट्राउजर्स पहनूंगा, ये शूज पहनूंगा, व्हाटएवर। तो एक तस्वीर आपके दिमाग में आएगी। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो शब्दों में बात नहीं करता, ह्यूमन ब्रेन तस्वीरों में बात करता है। तो जैसी तस्वीर आप अपने दिमाग में बनाएंगे, उसी तस्वीर के हिसाब से हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, उसी तस्वीर के हिसाब से हमारी मैग्नेटिक एनर्जी डेवलप होएगी, जिसको हम लोग इन अदर वर्ड्स कहते हैं मैसेजेस जो कैरी करते हैं। मैंने जैसे पहले ही कहा कि मैं आपको साइंटिफिक तरीके से नहीं समझाऊंगी, एक लेमैन के तरीके से समझाऊंगी कि हम जैसी विचार रख रहे, जैसी तस्वीर देख रहा है, वैसा ही विचार प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द मैग्नेटिक एनर्जी इन आवर बॉडी, एक इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हमारे वो पैदा हो रहे हैं। नाउ टू मेक इट लिटिल मोर easier for you to understand, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। लेट्स इमेजिन कि मैं आपसे कहती हूँ कि एक पानी की बोतल आपके हाथ में है। अब ये पानी की बोतल लेके आप दौड़ रहे हैं, सो यू आर रनिंग विद दिस वाटर बॉटल। अब जब आप दौड़ रहे हैं तो पानी की बोतल में पानी हिल रहा है। अब पानी अंदर हिल रहा है तो उस बॉटल के अंदर क्या हो रहा है? उस बॉटल के अंदर पानी के हिलने से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, बुलबुले प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है? पानी के अंदर भागने से, हिलने से बॉटल के वाइब्रेशंस बन रही हैं। द वाटर इज क्रिएटिंग वाइब्रेशंस। ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में 78% पानी है, तो क्या हमारे शरीर में वाइब्रेशंस नहीं बनती होंगी? हमारे शरीर में भी वाइब्रेशंस बनती हैं। पानी की बॉटल को तो हम हिला रहे थे तो वाइब्रेशंस बन रही थी, हमारे बॉडी को हिलने से वाइब्रेशंस नहीं बनती। हमारे बॉडी की वाइब्रेशंस बनती हैं बाय द थॉट्स, जो हम विचार रखते हैं उनसे क्रिएट होती है। और जो वाइब्रेशंस हम क्रिएट करते हैं वो या तो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है। इमेजिन कीजिए कि किसी पार्टी में कोई ड्रग एडिक्ट गया है और वो किसी को नहीं जानता पार्टी में। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि पार्टी खत्म होते होते ये ड्रग एडिक्ट किसी और ड्रग एडिक्ट के साथ खड़े होके अपना टाइम स्पेंड कर रहा होगा। कैसे ढूंढा उसने उसको इस पार्टी में? थ्रू वाइब्रेशंस। आप जैसी वाइब्रेशंस रखते हैं वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशंस ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खिंचती चली आती हैं। अगर आप एक नेगेटिव इंसान हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचती चली आएंगी।
और अगर आप एक पॉजिटिव बंदे हैं तो पॉजिटिव सिचुएशंस, पॉजिटिव लोग खुद ही चले आएंगे, क्योंकि आप लोगों की वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करती है, एंड दैट इज हाउ वी अट्रैक्ट देम टू आवर लाइव्स. एंड इन सिंपल वर्ड्स वी कॉल इट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे तो आई सजेस्ट, अगर आपको पढ़ने का शौक है या अगर आप पढ़ने का शौक नहीं रखते हैं, पिक्चर्स देखने का शौक रखते हैं, डू डाउनलोड अ फिल्म कॉल्ड द सीक्रेट. और यही आपको एक बुक में भी मिलेगी, द सीक्रेट, विच विल एक्सप्लेन इट टू यू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हम कैसे जिंदगी में कोई भी चीज चाहें अपने को अट्रैक्ट कर सकते हैं. देयर इज नथिंग which is impossible in your life. So whatever is happening is in your own hand. So whatever you want automatically gets attracted and comes to your life. And that is called the law of attraction. So मैं बात कर रही थी कि a lot of things we attract in our lives through the vibrations which we create by our own thoughts. If I'm negative, I will attract negative things, negative people. If I'm positive, I will attract positive people and positive situations. And as I said, कि कई बार एक ही चीज जब बार बार हमारे दिमाग में चलती है, that becomes our attitude. Because एटीट्यूड को बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी को बनाने में 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है. The first one is your family. The second one is your teachers, especially the school teachers. And the third one is your friends. ये 3 लोगों का जब हमारी ग्रोइंग स्टेज होती है जिंदगी की, इनका इतना स्ट्रॉन्ग हमारे ऊपर असर होता है कि इनकी कही हुई, इनकी बोली हुई बातें कई बार हमारी पर्सनालिटी को कंस्ट्रक्ट कर देती हैं या डिस्ट्रक्ट कर देती हैं. एंड आई थिंक वी ऑल गो थ्रू इट. आप जब छोटे होते हैं, मेनी ए टाइम्स कभी पेरेंट्स कह देते हैं छोड़ दे, तुझसे नहीं होगा, तेरे बस का नहीं है, अपने भाई को देख तुझसे कितना बेटर कर रहा है, अपनी बहन को देख, अपने कजन को देख, उसके मार्क्स तुझसे ज्यादा आ रहे हैं, तू छोड़ दे, मेडिकल तुझसे नहीं होगा, तू ह्यूमैनिटीज ले ले, अरे बेटा तू ये कर ले, तू वो कर ले. सो अ होल लॉट ऑफ पीपल कीप बम्बार्डिंग देयर ड्रीम्स ऑन टू अस, और they keep saying one thing again and again. अगर आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं, लेट्स से बाल्टी से, तो जब आप रस्सी खींचते हैं कुएं से, बाल्टी से, तो वो जब रोज उसमें से पानी निकलेगा, हजारों सालों तो नहीं, हजारों बार निकलेगा, कई सालों तक निकलेगा, तो आप देखेंगे कि जहां से रस्सी निकलती है ना, वहां पे डेंट पड़ जाता है दीवार में, क्योंकि बार बार रस्सी उस पर रगड़ती है. इसी वजह से द सेम थिंग हैपन्स. अगर एक ही चीज बार बार आपको कोई बोलता है तो इट लीव्स अ डेंट, वहां डेंट पड़ जाता है, एंड इट वी थिंक दैट इट इज परमानेंट, और ये डेंट कभी ठीक नहीं हो सकेगा. आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि हाथी जब होता है, जब बच्चा हाथी का पैदा होता है, तो जो महंत होता है हाथी को, जो लुक आफ्टर करता है, वो उसको मोटी मोटी चेन्स के साथ बांध देता है, क्योंकि हाथी का बच्चा बहुत शैतान होता है. ही वांट्स टू रन अराउंड हियर एंड देयर. पर जब वो मोटी चेन उसको बंधी हुई होती है, वो भागने की कोशिश करता है, तो वो चेन खिंचती है, उसको दर्द होता है, और वो रियलाइज कर लेता है कि वो भाग नहीं सकता, वो बंधा हुआ है, वो भाग नहीं सकता. कई बार कोशिश करता है, पर वो चेन से उसको दर्द होता है, और वो फिर मान लेता है कि मैं भाग नहीं सकता हूँ. तो देन हिज मेंटल कंडीशन हो जाती है उसकी कि मैं तो भाग नहीं सकता, मैं बंधा हुआ हूँ. और धीरे धीरे जैसे वो हाथी का बच्चा बड़ा होता जाता है, तो उसकी वो चेन हटा के उसको एक बस मोटे से नाड़े के साथ वो लोग बांध देते हैं. लेकिन इतने टनों वाला हाथी फिर भी खुद को छुड़ाने की कभी कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशनिंग ये हो गई है कि वो छुड़ा नहीं सकता, वो बंधा हुआ है. हम लोगों के साथ भी यही होता है कि ये कही हुई बातें, दे क्रिएट अ मेंटल कंडीशन इन आवर ब्रेन, एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये नहीं हो सकता, मैं अनलव्ड हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, और लोग मुझसे बेटर कर सकते हैं, जिंदगी औरों की बहुत अच्छी है, मेरी जिंदगी खराब है, मेरी किस्मत खराब है. ऑल दीज थिंग्स बिकम योर मेंटल कंडीशन. I will give you example of my own life before I go and tell you how to become more positive. Maybe you learn from my own life. Basically the thing is कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हूँ, मैं 4 फुट 10 इंच की हूँ, वो अब. But there was a time मैं 4 फुट 7 इंच 4 फुट 6 इंच की थी. Even till class 9-10 I was very very short.
और लोग मुझे तरह तरह के नाम बोलते थे। कोई ठेंगू बोलता था, कोई बॉनी बोलता था क्योंकि मैं थोड़ी मोटी थी, कोई मिनी रोड रोलर बोलता था। सो पीपल यूज्ड टू कॉल मी ऑल काइंड्स ऑफ नेम्स। मैं उनके मुंह पे तो हंसती थी, लेकिन दिल में बहुत दर्द होता था। मैं ही क्यों? मैं हमेशा जाके अपने पेरेंट्स से लगती थी, मैं छोटी क्यों, मैं छोटी क्यों। और उस उम्र में हेरिडिटी नहीं समझ में आती थी कि क्या होता है। मैं यही सोचती थी कि मैं क्यों नहीं लंबी हो रही, जबकि उस टाइम भी ये समझना ज़रूरी था मेरे लिए कि पेरेंट्स छोटे हैं तो आप भी छोटे होंगे। पर ये बात समझ में नहीं थी। आई यूज्ड टू गो फाइट विद माय पेरेंट्स। वो बेचारों ने मुझे लटकाया वटकाया सब किया, पर मैं लंबी नहीं हुई। एंड देयर वाज अ टाइम जब मैं कॉलेज में थी तो किसी ने मेरे को ये बोल दिया था, ना अक्ल है ना शक्ल। एंड वो जो सेंटेंस था, दैट वाज लाइक अ कॉफिन पे नेल लगा देते ना, मुझे बंद कर दिया मेरे मेंटल प्रिजन में। मुझे वाकई में लगा कि मैं छोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मेरी अक्ल है न शक्ल है, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी। हालांकि मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं मॉडल बनना चाहती थी, मैं मिस इंडिया बनना चाहती थी, मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी क्योंकि मुझे ग्लैमर का बड़ा शौक था। बट कैसे बनती? मैं जब कॉलेज के बाद इंटरव्यूज पे भी जाती थी, चाहे एयर होस्टेस का हो चाहे मॉडल का हो, वो मुझे रिजेक्ट कर देते थे क्योंकि मेरी हाइट ही नहीं थी। और बार बार रिजेक्शंस, बार बार लोगों की इन बातों का मुझे बोलना कि यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट गुड लुकिंग, तुम्हारे ना अक्ल है ना शक्ल है, तुम इस वक्त। सो आई वॉज मेंटली कंडीशनड कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी। एंड जब ये मुझे कहा गया कि इस लड़की के पास ना अक्ल है ना शक्ल है, चलिए बड़ा हीरोइन बन रहे, दैट एक्चुअली किल्ड माई सेल्फ एस्टीम। और मुझे लगा मैं जिंदगी में आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। एंड आई वॉज लॉक्ड इन माई ओन प्रिजन। एंड यू नो, जब भी आपकी जिंदगी में कई बार आप इस बुरे दौर से गुजरते हैं, भगवान कोई ना कोई इंसान एक फरिश्ते के रूप में जरूर भेजता है आपके पास। हम लोग रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं उस टाइम में, बट somebody does come and try to hold your hand. And it happened with me in the form of another teacher of mine, जो कॉलेज आई, घर आई, मुझसे बात करी और उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बेटा अगर 100 रुपए के नोट को मैं गंदा करती हूँ, तोड़ती हूँ, फाड़ती हूँ, फिर भी वो 100 का ही रहेगा, उसकी वैल्यू नहीं चेंज हो सकती। एंड शी सेज बिल्कुल इसी तरीके से सोसाइटी तुम्हें तोड़ेगी, गिराएगी, तरह तरह के नाम बोलेगी, लेकिन क्या किसी की बोलने से तुम्हारी वैल्यू कम हो सकती है? नहीं हो सकती। और उनका जो वर्ड्स थे मैं आज तक नहीं भूली। उनके वर्ड्स थे, डू नॉट मेक एनीबडी एल्सेस ओपिनियन योर ओन रियलिटी। किसी की सोच को अपनी सच्चाई मत मान लो। एंड शी सेज बेटा प्रूव योर वैल्यू टू पीपल, लोगों को अपनी वैल्यू प्रूव करो, और वो तभी होगा जब तुम खुद से प्यार करना सीखोगी। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू लव योर सेल्फ। हम सब ये करते हैं। शीशे के आगे खड़े होके सुबह जब खुद को निहारते हैं तो हम में से ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, काश मेरे बाल अच्छे होते, काश मैं पतली होती, काश मेरा नाक लंबा होता, काश मैं ज्यादा गोरी होती। और ये सब चीजें जब आप बोल रहे होते हैं तो सबसे पहले सुनता कौन है? सबसे पहले आप सुनते हैं। आप खुद सुनते हैं, आपका दिमाग सुनता है। और जब आप खुद को गाली देते हैं, खुद को अनएप्रिशिएट करते हैं, तो ये शरीर आपको क्या खा के अप्रिशिएट करेगा? वापसी में आपको क्या मिलेगा? वापसी में आपको दुख, तकलीफें, बीमारी मिलेंगी, क्योंकि इस शरीर को आपने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने खुद को हक किया एंड सेड कि डोंट वरी, गलती हो गई, कोई बात नहीं यार, फिर से ठीक हो जाएगा, यू आर द बेस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू डू इट? वी ऑलवेज थिंक कि हम औरों को हक करते, लेकिन कभी खुद से प्यार किया? कभी खुद को हक किया? कभी खुद को अप्रिशिएट किया? सो दिस इज व्हाट शी टोल्ड मी, लर्न टू अप्रिशिएट योरसेल्फ फर्स्ट। एंड शी सेड कि तुम्हारी हाइट तो तुम्हारी पर्सनालिटी का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत सारी चीजें अपने अंदर ढूंढो। एंड आई सैट डाउन विद अ पेपर एंड पेन, लिखा, और मैंने रियलाइज किया कि मेरी हाइट तो एक छोटा सा हिस्सा है, कितना कुछ है मेरे अंदर। एंड व्हेन आई चेंज्ड माय फोकस, तो दुनिया अपने आप चेंज होने लगी। Because as I said, I changed my vibrations to more positive, more focused, more goal oriented, and things around me started changing. People started appreciating me slowly and slowly. And one fine day when I was just walking on the road, मेरी नजर पड़ी एक न्यूज़पेपर पे जिसकी हेडलाइंस थी वांटेड वुमेन इन द आर्मी। मैंने बड़ा डर डर के, घबरा घबरा के उस पेपर को खोला, पढ़ा
कि यहाँ जरूर हाइट के बारे में कुछ लिखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. इट वॉज सिंपल प्लेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड गोइंग थ्रू अ मेडिकल बोर्ड, एंड आई अप्लाइड फॉर दैट. और बड़ी हिम्मत करके, बड़ी मेहनत करके मैं उसको एग्जाम को दिया, पास हुई. आई जॉइन द इंडियन आर्मी एंड आई केम आउट टू बी द फर्स्ट लेडी आर्मी ऑफिसर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन माई कॉर. और अब वही लोग जो मुझ पे हंसते थे, वही लोग अब मुझे सल्यूट करने लगे. एंड व्हाट आई टोल्ड देम that it does not matter what's between your head and your feet. आपके सर और पैर के बीच में क्या है, it does not matter. What matters is कि आपके सर और चिन के बीच में क्या है और आप इसको कैसे यूज करते हैं. So that's what I'm trying to tell you कि you will have to reprogram yourself. अगर आपके environment में you have to plant yourself in a positive soil. लेकिन आप अगर एक नेगेटिव सॉइल में प्लांटेड हैं, आसपास के सारे लोग नेगेटिव हैं, आप सारी चीजें नेगेटिव सोचते हैं, सारी बातें नेगेटिव सोचते हैं, तो एक्सपेक्ट क्या करोगे? अगर आप सीड डालोगे सेब का, तो सेब का ही पेड़ निकलेगा, आम का तो नहीं निकलेगा ना. सो सिंपल स्टोरी ऑफ लाइफ इज दैट वी आर सो मच कंडीशनड. हमारे एटीट्यूड ऐसे बन गए हैं कि हम इजी वे आउट ढूंढते हैं, नेगेटिव थॉट. और नेगेटिव थॉट सबसे पहले हम खुद से करते हैं. और जब हम खुद से बात करते हैं, देखो मैं इनको बोलती हूँ, नेगेटिव थॉट्स को मैं नाम देती हूँ एंड्स. ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट. ऑटोमेटिक. अरे वो रास्ते में जा रहा था, उसने मेरे से हेलो नहीं किया. क्यों नहीं किया? जरूर ये सोच रहा होगा, जरूर वो सोच रहा होगा. हम इतनी सी बात को कितना सोचते हैं, बड़ा बनाते चले जाते हैं. दीज आर कॉल्ड ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स. और एक छोटा सा भी आपने ब्रेड बनती कभी देखी होगी, तो जब ब्रेड बनती है तो थोड़ा सा उसमें खमीर, यीस्ट डालते हैं, तो ब्रेड यूं फूलती चली जाती है. इतनी सी ब्रेड इतनी सारी हो जाती है. सो सिमिलरली जब एक नेगेटिव थॉट हम अपने ब्रेन में डालते हैं, वो मल्टीप्लाई होके 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 इतना बढ़ जाता है, इट जस्ट ऑक्यूपाइज अ ब्रेन. और फिर ब्रेन से बाहर शरीर में बीमारियों के रूप में, फिर हमारी शरीर से बाहर हमारे एनवायरनमेंट में, आसपास में फैलना शुरू होता है. आप खुद देखिए, घर में एक जने का मूड खराब है ना, आप उसके आसपास बैठो, आपका भी मूड खराब हो जाएगा. बिकॉज that person is giving out that negative energy to everybody around them. नेगेटिव आपका पूरा नेगेटिव हो, एनवायरनमेंट पूरी नेगेटिव हो जाएगी. आपका परिवार पूरा नेगेटिव है, तो आपके आसपास के लोग भी नेगेटिव होते चले जाएंगे. एंड इट्स अ साइकिल. इट्स अ साइकिल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बड में, नीचे सीड में ही काट दिया जाए इस नेगेटिविटी को, कि हाँ भाई ये एक ऑटोमेटिक. एंड हाफ द थिंग्स विच हैपन, आधी चीजें जो हमारे दिमाग में हो रही होती है ना, वो कभी होती ही नहीं है. दैट इज व्हाई आई कॉल देम ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स. ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा. और जब आप सिचुएशन में पहुंचते तो वो चीजें होती ही नहीं है, और आप कहते हैं मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था. बिकॉज यू क्रिएटेड दैट नेगेटिविटी इन योर माइंड. आपने खुद क्रिएट करी है. लेकिन ऑन द अदर साइड यू कैन ऑल्सो क्रिएट समथिंग पॉजिटिव इन योर माइंड. And then when you work on those things will be very much different. मैंने जिंदगी 2 मैसेजेस के ऊपर जीती हूँ. बहुत पहले से ही 2 मैसेजेस के ऊपर मेरी जिंदगी, कहते ना पिलर्स ऑफ माई लाइफ, फाउंडेशन 2 हैं. वन इज दिस टू शैल पास. ये भी गुजर जाएगी. बिकॉज लाइफ इज लाइक अ व्हील. सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा. सो अगर दुख चल रहा है एंड इतना ज्यादा गहरा होता जा रहा है कि रात जितनी अंधियारी होती है, डॉन होने को ही है. सो द मोमेंट आई एम हिटिंग द रॉक बॉटम, आई नो आई एम गोइंग टू नाउ गो अप. दिस व्हील इज गोइंग टू गो अप. सो दिस टू शैल पास इज वन मंत्र आई लिव बाय. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट मंत्र आई लिव बाय इज आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई गेट टू इट. अभी से क्या सोचना कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा. आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई गेट टू इट. हो सकता है कि जब मैं उस सिचुएशन में पहुंचू तो ब्रिज ही ना हो. सो डोंट थिंक अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो. प्रिपेयर फॉर इट. फाइन, अपना काम तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, बट डोंट कीप थिंकिंग नेगेटिव अबाउट इट कि हाय पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कोरोना खत्म होगा कि नहीं होगा, मैं एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा. डोंट कीप थिंकिंग अबाउट दीज नेगेटिव थिंग्स. जस्ट प्रिपेयर. जो आपके बस में है वो तो कर सकते हैं. कल किसने देखा
वी हैव नो आइडिया कि कल क्या होने वाला है, नो वन नोज, बट अभी आज ये तो हमारे पास में है. सो द पॉजिटिविटी इज इन द मोमेंट, लिविंग विद माइंडफुलनेस, living in the moment, living with focus in the present moment is something we all have to learn to do. पास्ट को खींच के नहीं लाना, जो गलतियां हो गई पास्ट में हो गई, वी कैन नेवर गो बैक टू द पास्ट. हमारी आदत है ज्यादातर लोगों की, हमने एक मंदिर सा बना रखा है पास्ट में, हम बार बार उधर जाते हैं, रोते हैं, दहाड़ते हैं, पूजा करते हैं, रो रो के. For what? क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते. What you can do is to learn from that and mindfully put that learning into the present so that you improve your future. But as I said, no one knows about the future. We can't go back, we can't go forward, we can only live in the present. So the first lesson of being positive is to live in mindfulness, with mindfulness. अभी क्या हो रहा है? I'm going to make this moment the best moment of my life. I'm not going to think negative. So first and foremost, live with mindfulness. अब जो मैं बात बताने जा रही हूँ, बहुत गहरी बात बता रही हूँ, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि ध्यान से सुनिएगा. हम लोगों की जिंदगी 24 घंटे में 5 स्टेजेस से गुजरती है. Our life goes through 5 different phases in 24 hours. अभी जो आप मेरी बात सुन रहे हैं, फुल अटेंशन के साथ सुन रहे हैं, ऑल योर 5 सेंसेस आर वर्किंग. दिस स्टेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बीटा स्टेट, यानी कि फुली कॉन्शियस. आप बीटा स्टेट में हैं, फुली कॉन्शियस हैं. फिर एक टाइम आएगा जब आप ऐसे गिर रहे होंगे नींद में, आपको नींद आ रही है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कच्ची नींद. जब हमारी वो स्टेट आती है दिन में, दैट इज कॉल्ड अल्फा स्टेट. अल्फा, ALPHA, अल्फा स्टेट, यानी कि ना आप कॉन्शियस हैं ना आप सोए हैं. फिर एक टाइम आएगा कि आप सो चुके होंगे पर आप बहुत करवटें बदल रहे हैं, और इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं थीटा स्टेट. और फिर सुबह सुबह 4-5 बजे के करीब, 3-4 बजे के करीब, अवर बॉडी इज जस्ट लाइंग लिम्प. बॉडी में कोई करवट नहीं बदल रहे, इट्स जस्ट लाइंग लिम्प, सिर्फ सिस्टम चल रहा है अंदर. दैट इज कॉल्ड द डेल्टा स्टेट. तो थीटा और डेल्टा में हमारी बॉडी रिपेयर हो रही है. काम की है 2 स्टेजेस, अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा. बीटा जब मैं इंफॉर्मेशन ले रही हूं, एंड अल्फा जब मैं इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही हूं. सिंपल कॉमन भाषा में आपकी जिंदगी के 2 इंपॉर्टेंट पहलू हैं, कॉन्शियस स्टेट जो आप अभी हैं, और जब आप सो जाएंगे सब कॉन्शियस स्टेट. इंसान जिंदगी में कभी कुछ नहीं भूलता, कुछ नहीं भूलते हम लोग. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आप पैदा हुए हैं, हॉस्पिटल में हैं, कैसा लग रहा है आपको, आप कहेंगे मैम क्या बात कर रही हो, मैं तो अभी कुछ सेकंड हुए मुझे दुनिया में आया, मुझे क्या पता मेरे को कैसा लग रहा. लेकिन यही चीज अगर आपको हिप्नोटाइज करके पूछी जाए तो आप एग्जैक्टली बताएंगे हाउ यू वर फीलिंग एट दैट टाइम. बिकॉज ह्यूमन ब्रेन के अंदर अगर हम इसे खोलें तो इसमें इतना डेटा है, ना सिर्फ इस लाइफ टाइम का, जन्म जन्मांतरों का डेटा होता है इसके अंदर. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन रीइंकार्नेशन, बट अगर आप नहीं बिलीव करते तो एक और किताब रिकमेंड करती हूँ आपको, क्योंकि आई नेवर टॉक विदाउट प्रूफ्स. सो एक और किताब आपको बताती हूँ. द नेम ऑफ द बुक इज मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स बाय डॉक्टर ब्रायन वेस. नाउ डॉक्टर ब्रायन वेस इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और ये किताब उनकी केस स्टडीज, रियल केस स्टडीज के बारे में है, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा. आपके साथ भी नहीं होता कि कई बार आप रास्ते पे जा रहे हैं, आप कहते हैं मुझे लगता है ये चीज तो मैंने पहले देखी हुई है, अरे ये चीज तो मेरे साथ पहले हुई है. Why did you feel like that? All is explained in that book. So what I'm trying to say कि हम लोग कभी कोई चीज भूलते नहीं हैं, पर भगवान ने एक सिस्टम बनाया दिमाग में कि दिमाग बड़ा छोटा है, अरे हर एक चीज इंसान याद रखेगा तो दिमाग फट जाएगा. सो भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक कंपार्टमेंट बनाया दिमाग के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड. एक गोडाउन है
जहाँ पे हर चीज जाके हमारी स्टोर होती चली जाती है, और जब हमें जरूरत होती है तो हम उसको निकाल के बाहर लेके आते हैं। एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन आवर ब्रेन, इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। सो हम बीटा में स्टेटमेंट लेते हैं, बीटा में चीजें सीखते हैं। जो चीज हमें इमीडिएट चाहिए हमारे पास रहती है, जो चीज हमको लगता है भूल जानी चाहिए वो हम भुला देते हैं। हमको लगता है हम भुला दिए, लेकिन हम भूले नहीं, वो जाके स्टोर हो गई है सबकॉन्शियस माइंड में। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, ये यहाँ पर जाने के बाद अगर आप किसी तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर सकें, जा सकें, यू कैन चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ। अगर आप कोई हैबिट तोड़ना चाहते हैं, कोई चीज को बहुत डेस्परेटली पाना चाहते हैं, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अल्फा स्टेट में जाके उसका बीज बोना है। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? बहुत आसान है। आप आज एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। सोने से पहले रात को अपने तकिए की तरफ मुंह करना, और तकिए को लास्ट चीज, सोने से पहले आखिरी काम, तकिए को आपने मैसेज देना है कि कल सुबह मुझे 5 बजे 6 बजे जितने बजे भी उठना है उठा देना, पूरे फेथ के साथ बोलना। और फिर देखना क्या होता है। आपकी प्लॉप 5 या 6 बजे जो भी टाइम दिया, आपकी आंख खुद ब खुद खुल जाएगी। कैसे खुली? वो ऐसे खुली कि आपने ये सीड अपने सबकॉन्शियस में डाल दिया था। यानी कि द लास्ट थॉट विच यू कैरी फ्रॉम कॉन्शियस स्टेट एज यू आर एंटरिंग द सबकॉन्शियस स्टेट कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। और हम क्या करते हैं? सोने से पहले नेगेटिव न्यूज देख रहे हैं, घोस्ट स्टोरीज देख रहे हैं, नेगेटिव चीजें सुन रहे हैं, नेगेटिव म्यूजिक, नेगेटिव कुछ भी नेगेटिव अगर आप आखिरी चीज कर रहे हैं सोने से पहले, तो ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगी। You will, whether you like it or not, you will always remain a negative person. So, the first thing which I told you is that you have to live with mindfulness. Second thing is that do not start or do not end your day with negativity, because that will become a part of your personality. सुबह उठते ही, हम जब छोटे होते थे, जब मैं बच्ची थी, तो हम सुबह उठते थे, या हम लोग ये देखते थे जिंदगी में, सुबह उठने की, तो जब उठते थे सुबह तो हम लोग अपनी हथेलियों को देखते थे, भगवान को याद करते थे। आज हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप मैसेजेस देखते हैं, जो कि हो सकता है कि पहला ही मैसेज इतना नेगेटिव हो कि यू स्टार्ट योर डे विद नेगेटिविटी। हम लोग छोटे थे तो देखते थे कि कहाँ चांदनी रात है वहां बैठे, अब ढूंढते हैं कहाँ चार्जिंग का प्लग है वहां बैठे। So what we have to remember is that don't ever plant yourself. दिन में तो करना ही है, लेकिन maximum most important thing is don't start your day and don't end your day with negativity. अगर आप ये करेंगे तो आप एक नेगेटिव इंसान बनते चले जाएंगे। So I suggest सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा म्यूजिक सुनिए। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो लाफ्टर चैलेंज टाइप कुछ ऐसा शो देख लीजिए। बट डोंट लुक एट और लिसन, डोंट लेट योर 5 सेंसेस सोक इन एनीथिंग नेगेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो रात को कभी न्यूज देखती नहीं, मैंने टाइम बांध रखा है न्यूज का पोस्ट लंच, कि ना तो मेरी बीटा स्टेट पे इफेक्ट हो, ना मेरी अल्फा स्टेट पे इफेक्ट हो, पोस्ट लंच। और एक ही चैनल जिसपे मुझे लगता है, मुझे विश्वास है, दैट्स द वन आई विल वॉच, मेन न्यूज, एंड दैट इज डीडी चैनल। कुछ बड़ी चीज हो रही होगी तो डीडी में बताएंगे, बहुत कुछ चल रहा होगा दुनिया में, बट जो इम्पोर्टेंट है, जो एक्चुअली जानना है, दैट विल कम ऑन सम नेशनल चैनल। अपना हेडलाइंस देखो, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू कीप डिगिंग इन योर व्हाट्सएप, इन योर फेसबुक, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या रहा है, जो भी बड़ा हो रहा है आपको वहाँ एक ही चैनल से पता लग जाएगा। पिक योर चैनल। मैंने अपना पिक किया, you pick your channel, whichever one it is, if it is a Facebook group you want to follow, if it is a whatever app, WhatsApp group you want to follow, pick one. Don't confuse your brain with information overload, which is too much. Information overload can really harm you. Don't ever do that. एक ग्रैंडफादर अपने बच्चे से बता रहा था कि हम सब के अंदर 2 वुल्फ्स होते हैं, 2 भेड़िए होते हैं।
जो आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर बच्चे ने पूछा दादा से कि दादाजी फिर कौन सा भेड़िया जीतता है? तो दादाजी ने कहा जिस भेड़िए को मैं खाना खिलाऊंगा वही जीतेगा। तो ये जो दो भेड़िए हमारे अंदर है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और हम अगर नेगेटिव को खाना खिलाते रहेंगे 24 घंटे, इट विल बिकम फैटर एंड फैटर एंड फैटर, एंड देन इट टेक्स यू ओवर, because he says, see, I am the muscle man, I will take you over because I am a negative person. And then you come up with all kinds of insecurities, negativity, fear. Very important thing. If you really want to be a positive person, you have to discard fear, you have to come out of fear. और लोग कहते हैं मैम मैं स्टेज पे जाता हूँ मुझे डर लगता है, मैं लोगों से बात करता हूँ मुझे डर लगता है, मैं ये करता हूँ डर लगता है, वो करता हूँ डर लगता है। तो मैं आज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी कि डर से कैसे निकलना है। इमेजिन करो कि मैं आपको बोलती हूँ कि एक नींबू दे रही हूँ आपके हाथ में, फ्रेश नींबू है, और मैं आपसे कहती हूँ कि ये फ्रेश नींबू है, इसको स्मेल करो। आप स्मेल करोगे उस नींबू को तो एक सिट्रसी स्मेल आएगी आपको नींबू की। और फिर मैं आपसे कहूंगी कि अच्छा आप इसको काटो, आप उसको काटते हैं, बहुत अच्छा सा स्मेल आता है नींबू में से। और अब मैं आपको कहती हूँ कि ये जो कटा हुआ नींबू है उसको अपनी जीभ पे जाके जोर से निचोड़ो, और आप उसको जीभ पे निचोड़ते हैं। मैं आपको देख तो नहीं पा रही हूँ, बट मैं महसूस जरूर कर सकती हूँ कि जिसने इस नींबू को इमेजिनेशन में अपनी जीभ पे निचोड़ा उसके मुंह में पानी जरूर आया है। अब आपके मुंह में पानी क्यों आया? नींबू तो था ही नहीं। सिंपल चीज है कि ह्यूमन ब्रेन रियल और फेक के बीच का फर्क नहीं कर सकता। ह्यूमन ब्रेन को नहीं पता कि ये चीज रियल है या ये चीज फेक है। आप उसको जो बोलेंगे वो उसको रियल मान जाता है। फेल शब्द को खोल के देखिए, FAIL, व्हाट डज इट से? फॉल्स एविडेंस अपीयर्स रियल। फॉल्स एविडेंस, FEAR, फॉल्स एविडेंस अपीयर्स रियल, यानी कि फॉल्स चीज हमको लगता है कि सच्ची है। मैंने पहले भी कहा कि ब्रेन शब्द नहीं देखता, सिचुएशंस की पिक्चर्स देखता है। सो इफ यू टेल योर ब्रेन कि मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, तो यू विल सी दैट पिक्चर कि मुझे लोगों से बात करने में डर लग रहा है, और इवेंचुअली आप लोगों से बात करेंगे तो डर आएगा ही आएगा, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन हैज टेकन इट एज रियलिटी। मैं छोटी थी तो अपने पेरेंट्स भाई के साथ मैं जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखती थी, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं गाड़ियां उड़ रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, एक्शन एक्शन एक्शन। और रोज रात को मैं नाइटमेयर से उठती थी, क्योंकि मुझे लगता था, मेरा ब्रेन कहता था कि वॉर हो रही है, एक्शन एक्शन एक्शन। I could not sleep well because my brain took it as reality. So anything you will feed your brain will take it as reality. So इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो तस्वीरें मैं अपने ब्रेन को दिखाऊं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपको स्टेज से डर लगता है तो यू टेल योर ब्रेन कि डर तो कोई होती नहीं है चीज, ये तो मेरा थॉट है। ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू इज दैट आई हैव टू क्रिएट अ पिक्चर इन माय ब्रेन कि हाँ बहुत अच्छा होगा, मेरा ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग सीटियां मार रहे हैं, लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। सी दैट एंड देन सी हाउ योर बॉडी विल रिएक्ट दैट यू विल गिव योर बेस्ट प्रेजेंटेशन। इट्स ऑल इन योर ब्रेन। ये मैन मेड वर्ड है फियर, फॉल्स एविडेंस अपीयर्स रियल। आदमियों ने बनाया है ताकि फेलियर और लूजर्स एंड विनर्स के बीच का फर्क बनाया जा सके। अगर हर किसी के अंदर से डर हट गया तो सभी विनर्स बन जाएंगे। तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी बन गई, किसी को तो लूजर बनना है, चलो फियर डाल देते हैं इनके दिमाग में। सो फियर होता ही नहीं है, इट्स अ मैन मेड थिंग। तो इसीलिए फियर से नहीं डरना, ऑलवेज थिंक। और वो क्योंकि मैंने बोला एटीट्यूड बन गया है फियर, तो उसको कैसे हटाएं? हाउ डू आई हैव द एटीट्यूड ऑफ ऑलवेज थिंकिंग पॉजिटिव? एफर्मेशंस, शब्द। शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी जो एक दिन क्लास में आई, तो शी हैड अ ब्लू आई। मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया? तो शी सेज मैम मैं जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी उसने मेरे को बहुत मारा, एंड यू नो ही इज वेरी अब्यूजिव। हर बार वो मुझे बहुत वायलेंट होता है मेरे के साथ में, एंड इस बार तो हद ही क्रॉस हो गई। पर मैम मैंने सोचा है मन में कि आई एम नॉट गोइंग टू बी इन दिस रिलेशनशिप। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यू शुड नॉट बी। तो she says मैम I'm just going to break up। और उसके बाद she informed me कि she has had a break up। so ऐसे चलो अच्छी बात है, अब now she'll be in better hands।
फिर वो 6-8 महीने के बाद मुझे फिर मिली तो और ज्यादा दुखी दिख रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, पहले वाले को छोड़ा नहीं क्या? शी सेज नहीं मैम, मैंने उसको तो छोड़ दिया था, बट द अदर गाय आई मेट ही इज वर्स देन द फर्स्ट वन, वो पहले से भी बुरा है। एंड शी सेज आई डोंट नो मैम, मैंने तो मन में ये सोचा है कि आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला आप जहां बोलेंगे मैं वहां शादी करूंगी। सर बड़ी अच्छी बात है। 1.5 साल के बाद मुझे एयरपोर्ट में मिली बड़ी बुरी हालत में। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, दूसरे वाले से ब्याह किया तुमने? बोली नहीं मैम, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी करी, इट वाज अरेंज मैरिज, लेकिन मेरा हस्बैंड तो उन दो से भी बदतर है। फिर बोली मैम मेरे ही साथ क्यों होता है ये? मैंने कहा बैठो मैं समझाती हूँ कि पहली बार मुझे बताओ, पहली बार जब आप उस रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे थे तो आपने अपने मन में क्या सोचते थे? शी सेज मैं हमेशा कहती थी मुझे वॉयलेंट बंदा नहीं चाहिए, मुझे वॉयलेंट बंदा नहीं चाहिए। मैंने कहा आप सोचो फोकस कौन से शब्द पे था? वॉयलेंस। तो आप जिस चीज को फोकस कर रहे हो वही चीज खिंची चली आएगी आपके पास। दूसरी बार क्या बोला आपने? बोली दूसरी बार मैंने ये बोला आई डोंट वांट समबडी हु इज बैड टू मी, हु इज बैड टू मी, हु इज बैड टू मी। फोकस कहाँ था? बैड। सो अ बैड गाय केम इनटू योर लाइफ। वर्ड्स में बड़ी ताकत होती है, दे हैव वाइब्रेशंस ऑफ देयर ओन। सोच समझ के शब्द निकालो अपने मुंह से। So then she changed her words. She made it, I want peaceful life, happy life. Now she's happily in the same relationship with another child now, very happy. शब्दों में बहुत पावर होती है. What we say matters a lot. इसलिए I can't do it, I could have, I should have, इन words को हटा दीजिए. What you have to do is to create positive words in the form of affirmations. I am the best, I can do it, I am a winner in life. और क्योंकि बार बार जैसे कुएं में वो रस्सी लगनी थी, नाउ यू हैव टू रिपीट दीज वर्ड्स. आप बार बार बोल तो नहीं पाएंगे, जब जब बोल पाओ बोलो, बट अपने आसपास इन शब्दों को लिख दो. अपने मोबाइल का उसको बना लो डिस्प्ले में, अपने डेस्क पे लगा लो, अपने बाथरूम के मिरर पे लगा लो, अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे लगा लो, ताकि बार बार वो शब्द बार बार आपके दिमाग में घूमते रहें. The more positive affirmations, the more they will work for you, क्योंकि brain will take it as reality. So it's very very important कि जो words आप use करते हैं, even when you as a spiritual disciple, हमारे जो मास्टर्स हमें कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि जब आप भगवान से प्रार्थना करते हो, then you have to use the right words. अगर आपको किसी को डांटना है, use the right words. Words have very strong vibrations. Words have very strong power. So the next thing which I'm telling you is that you have to write affirmations around you so that जहां जहां भी आप जब जब देखें आपको पॉजिटिविटी नजर आए, राइट? एंड जो अनसर्टेनिटी फ्यूचर की है, आई थिंक इट्स गुड अनसर्टेनिटी होना. लुक एट दिस अनसर्टेनिटी इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज जब हमें पता होता है कि क्या होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल आप एक पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी आपका हाथ देख के कहते हैं जी आपका तो आने वाले 3 महीने में एक्सीडेंट होने वाला है. बिलीव मी, आप रोज इस डर से उठोगे कि आज तो एक्सीडेंट नहीं होगा, कि कल तो एक्सीडेंट नहीं होगा. एंड व्हेन यू कीप थिंकिंग अबाउट इट, तो हो क्या रहा है? यू क्रिएटिंग दैट पिक्चर, और वो होगा ही क्योंकि आप उसे खुद बुला रहे हो. लेकिन अगर आपके पास पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला है, तो देन यू विल नॉट बी लिविंग इन दैट फियर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट उस मेंटल प्रिजन में मत रहो कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा. जो कर सकते हो फ्यूचर को बेटर करने के लिए, वो करते चले जाओ. एंड सरेंडर कि मेरे से जो हो सकता है भगवान मैंने किया, अच्छा होगा, जो होगा अच्छा ही होगा. It's going to be positive. Think about it that way. Okay? And जब भी नेगेटिविटी आए, जब भी मन इधर उधर भटके, नेगेटिव थॉट्स की तरफ भटके, एक चीज कर लो. मतलब इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, एक रबर बैंड डाल लो. टाइट नहीं होना चाहिए, खून नहीं रोकना हमने अपने आप से ऑनेस्ट होना और खुद को पनिशमेंट देनी. एक रबर बैंड डाल लो. जब भी नेगेटिव थॉट आए, जोर से उसको खींचो, पटाक, यहाँ लगेगा, दर्द होगा. एक तो वो आपकी सजा थी कि तुमने नेगेटिव क्यों सोचा. अब ऑपोजिट सोचो, जो भी सोच रहे थे उसका ऑपोजिट सोचो.
जब आप 5-6 बार ये करेंगे ना, 7वीं बार आपका मन नहीं करेगा कि मैं रबर बैंड पुल करूं, आप खुद ही बोलेंगे बाबा नहीं, ऑपोजिट सोच ले, मैंने खुद को सजा नहीं देनी है. So sometimes we have to find ways and means to punish ourselves for thinking negative. And very important, keep your mind busy. अपना माइंड खाली मत छोड़ो. An ideal mind is a devil's workshop. मन खाली होगा तो 10 चीजें दिमाग में घूमती रहेंगी. So माइंड को बिजी रखो, कुछ ना कुछ करते रहो, कोई नई चीज सीखते रहो, ओके, कुछ नया नया करते रहो. एंड डोंट बी लाइक अ स्पंज. जो भी लोग कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं, just don't be part of that conversation. Excuse yourself and move away. Stay away from negative people, negative situations, negative talk. क्योंकि ना चाहते हुए भी unconsciously you take that negativity into you. और फिर आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं. And to be more happier, you also have to be very grateful. बहुत कुछ दिया है भगवान ने आपको, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, सर पे छत है, खाने को मिल रहा है, आप हेल्दी हैं. थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल जिनके पास ये कुछ भी नहीं है. आपके पास जो कुछ भी है, बहुत से लोग उसके लिए भी तरसते होंगे. सो अनदर वे टू कीप योरसेल्फ गोइंग पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा कि आधा ग्लास है या पूरा ग्लास है, डजंट मैटर, ग्लास तो है, उसमें पानी तो है, चाहे थोड़ा ही है, पानी तो है. बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट गॉड हैज गिवन यू rather than cribbing and crying about things. And don't keep overthinking. एक ही चीज बार बार सोचते रहोगे तो वो ही रस्सी की तरह डेंट कर देता है दिमाग में. मैं क्या करती हूँ, व्हाट इज माई स्ट्रैटेजी. मेरे को कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं, सारी दुनिया को होती है, मेरे को भी. सो कोई प्रॉब्लम आती है जिसका सोल्यूशन नहीं मिलता, मैं सारा दिन नहीं सोचती उसके बारे में. मैंने एक टाइम बांध के रखा हुआ है. बिफोर माई डिनर 1 hour आई कॉल इट वरी टाइम. आई जस्ट टेक माई फेवरेट जगह, मेरी जो घर की है, फेवरेट चेयर, फेवरेट कॉर्नर, मैं वहां बैठ जाती हूँ अलार्म लगा के कि दिस 1 hour आई एम ओनली गोइंग टू थिंक द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. पेपर पेन लेके बैठ जाती हूँ, और जब मैं फोकस्ड तरीके से उस प्रॉब्लम के बारे में सोचती हूँ तो मुझे सोल्यूशन बड़े सारे मिल जाते हैं, रादर देन मैं स्कैटर्ड सारे दिन उसके बारे में सोचूं. तो मैं एंग्जाइटी में ज्यादा चली जाती हूँ रादर देन फाइंडिंग द सोल्यूशन. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट do not keep overthinking about things. If you keep overthinking, then you will never be able to find anything about yourself. And as मैंने कहा कि then this is the time जो हमको मिला है to reskill ourselves. कुछ नया सीखिए, खाली बैठे हैं, कुछ नया सीखिए. So many courses are available on the net at very very nominal cost, and one of them which I discovered is udemy.com. udemy.com. You name a subject and they have it. 450, 500, मतलब उन्होंने इतनी रेट्स गिरा के रखे हैं, फ्रॉम thousands to 400, 500. आराम से आप कोर्स ले सकते हैं, कर सकते हैं, एंड गेट सर्टिफाइड ऑल्सो, सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा. सो रीस्किल योरसेल्फ एंड ड्रॉप द पास्ट. पास्ट को नीचे फेंक दीजिए, पास्ट को गिरा दीजिए, जजमेंट्स को गिरा दीजिए, एक्सपेक्टेशंस को गिरा दीजिए, यू नो, बिकॉज एंड डोंट लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू व्हाट अदर्स आर थिंकिंग. औरों ने जो बोल दिया उनके तरीके से जिंदगी मत जियो, बिकॉज कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना. आई विल कम टू दिस पॉइंट टू द एंड बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड, एंड आई हैव, दिस इज अ टॉपिक जिस पे मैं आप घंटों बात कर सकती हूँ, बट आई विल कम टू दिस पॉइंट वंस अगेन. कुछ तो लोग कहेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट स्टार्ट टॉकिंग ओनली पॉजिटिव वर्ड्स. मुंह से हमेशा पॉजिटिव ही निकालो, एंड यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली. रोज सुबह अपने रूटीन के साथ उठो, रूटीन के साथ सो. इवन योर डाइट हैज टू बी गुड, क्योंकि अगर आप डाइट भी बहुत तली भुनी फास्ट फूड खाते हैं, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स अवर थॉट्स. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नींद पूरी लो, 5-6 घंटे, जितना भी. आई थिंक 6 hours इज अ गुड टाइम. 6 से 8 कहते हैं आपको नींद जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, फिर उठते ही आपने नेगेटिव चीजें देखी, सारा दिन अपने दोस्तों के साथ नेगेटिव बातें करी, नेगेटिव न्यूज देखी, मतलब खाना भी नेगेटिव खाया, एवरीथिंग इज पाइलिंग अप एंड पाइलिंग अप एंड पाइलिंग अप. देखो, आपकी जिंदगी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ. कोई बाहर से नहीं आएगा आपकी जिंदगी जीने के लिए. Unless you don't take charge of your life, somebody else will take charge of your life. और आप नहीं चाहेंगे कि आपकी जिंदगी कोई और चलाए. It's very very important that you take charge of your life. So एक दिन आराम से बैठो, कागज पेन लेके बैठो, and then think what are the 3
sources of negativity in your life? ऐसी 3 चीजें हैं जिनकी वजह से आप नेगेटिव होते जा रहे हैं, और उसको लिखो. What can I do? What can I do to spend less time with these 3 resources this week जो मुझे नेगेटिव बना रहे हैं? Come up with ideas and action steps. वो जो 3 रिसोर्सेज आपने बनाए हैं, फॉर डूइंग दैट ऑन अ पीस ऑफ पेपर और ऑन योर फोन, जहां पे भी आप करना चाहें. सो इफ यू कांट कम अप विद द स्टेप्स फॉर डूइंग दोज 3 थिंग्स राइट नाउ, देन फोकस ऑन डूइंग इट विद जस्ट अदर 3 सोर्सेज. कि वही चीज मैं 3 दूसरे सोर्स के साथ करके देखूं, डू आई स्टिल फील नेगेटिव अबाउट इट, और फिर 7 दिन तक उसके ऊपर काम करो. ओके, सो व्हेन आई फाइंड माई सेल्फ इन अ सिचुएशन दैट लुक्स वेरी ब्लीक, वेरी नेगेटिव, मैं अपने से क्वेश्चन पूछती हूँ. क्वेश्चंस कैसे पूछती हूँ कि हाउ वुड माय बेस्ट फ्रेंड और पेरेंट्स सपोर्ट एंड हेल्प मी इन दिस सिचुएशन. कौन मेरी मदद कर सकता है इस सिचुएशन में? क्योंकि अपने अंदर अगर मैं चीजें दबा के रखूंगी तो वो बढ़ती 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 इतनी बढ़ जाएगी कि मेरी नेगेटिव हेल्थ हो जाएगी, मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी. आई माइट इवन wants to end my life, which a lot of people are doing nowadays. So I need to talk it out with someone. So what's one good thing about this situation? हर situation जो नेगेटिव आएगी उसमें सोचो कि सब चीज तो नेगेटिव है, कोई एक चीज तो अच्छी होगी इसमें. राइट इट डाउन, फोकस ऑन दैट वन गुड थिंग. देन व्हाट्स वन थिंग आई कैन लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन. ये मुझे कुछ सिखा के जाएगी सिचुएशन. जैसे अभी भी कोरोना हमको बहुत कुछ सिखा रहा है. पिक अप वन थिंग विच यू हैव लर्न फ्रॉम इट, and that what's one thing I can do differently the next time ऐसी situation आएगी तो मैं उसको differently कैसे handle करूंगा. So you are the one who has to take charge of it. और चलते चलते 2 कहानियां. पहली कहानी, again this is all about positive thinking. पहली कहानी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. अब क्या था, एक गांव में एक आदमी ने एक मिठाई की दुकान बनाई और उसकी इनॉग्रेशन करी, और उसने अपने बोर्ड लिखा, जो भी उसका नाम था, बोर्ड के नीचे उसने क्या लिखा, यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं. अब लोग आने लगे, इनॉग्रेशन थी, उसके दोस्त भी आने लगे. एक दोस्त आया और मिठाई खाई और ऐसे ऊपर देखा, कहते ये क्या लिखा है तूने, यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं. अरे यार, ये ताजी मिठाइयाँ ऐसे लिखने से तो लोग सोचेंगे कि तू पक्का बासी मिठाइयाँ बेचता है, तभी तूने जानबूझ के लिखा है यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं. एक काम कर, ये ताजी हटा दे. उसने बोला हाँ भाई तू सच्ची बोल रहा है. तो उसने क्या लिख दिया, यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं. अब वो दोस्त तो चला गया, कोई दूसरा दोस्त आया, उसने भी ऊपर देखा, यार ये क्या लिखा है तूने, यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं. चारों तरफ मिठाइयाँ पड़ी हैं, साफ दिख रहा है मिठाइयाँ मिलती हैं. लोग क्या कहेंगे, बेवकूफ है, हमको अंधा समझा है कि यहाँ मिठाइयाँ मिलती है, तूने बाहर लिखा है, हटा दे ये शब्द मिठाइयाँ. तो उसने बोला हाँ भी तू ठीक बोल रहा है. उसने लिख दिया यहाँ मिलती हैं. अगला दोस्त आया, उसने भी ऊपर देखा, यार ये तूने क्या लिखा है, यहाँ मिलती हैं. क्या मिलती है, जूते मिलते हैं, टमाटर मिलते हैं, सब्जी मिलती, क्या मिलता है यहाँ, पागल है, क्या लिखा है तूने, हटा दे, मिलता है. उसने हटा दिया. अब रह गया यहाँ है. अगला दोस्त आया, बोले ये क्या लिखा है तूने, यहाँ है, क्या है यहाँ पे. अरे यार कुछ तो है यहाँ पे, पर क्या है, लोगों को कैसे पता लगेगा. एक काम कर, तू यहाँ लिख, यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं. हाँ हाँ सही बोल रहे हो. और वापस वहीं पहुंच गया, यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं. कहने का मतलब ये कि आपका दिमाग जो कह रहा है, दैट इज व्हाट इज राइट. जो लोग कह रहे हैं उनकी बातों की तरफ जाओगे तो आप जिंदगी में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगे. इसीलिए अपना दिमाग यूज करो और अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव चीजें डाल के रखो. जो चीज अंदर होगी वही बाहर निकलेगी और वही सिचुएशंस आपको अट्रैक्ट करेंगी. और चलते चलते लास्ट कहानी, जैसे मैंने कहा था, हर सिचुएशन को हमेशा देखो कि इसमें अच्छा क्या है. तो मैं चलती हुई आज की लास्ट कहानी आपको सुनाती हूँ कि एक पंडित जी थे, और वो पंडित जी बहुत पहुंचे हुए पंडित जी थे, और जो भी वो पूजा करते थे उसमें उनको सक्सेस मिलती थी. उनकी 2 बेटियां थी. बड़ी बेटी की शादी एक किसान से करी और छोटी बेटी की शादी एक कुम्हार से करी, स्कल्पचर से करी. शादी हो गई, बच्चियां अपने घर चली गईं. अब 6 महीने हो गए, पंडित जी का दिल किया मैं अपनी बच्चियों से मिलके आऊं. बड़ी बेटी के घर पहुंचे जो कि फार्मर से शादी की हुई थी, तो देखा उसकी हालत बड़ी खराब है. बोले बेटा इतने अच्छे घर में शादी की थी, ऐसा क्या हो गया तुम्हें. शी सेज पापा हमने बहुत मेहनत करी, जितने पैसे थे अच्छे सीड्स खरीदे, उनको हमने बोया,
लेकिन पापा बारिश ही नहीं हुई है 6 महीने से, अकाल पड़ गया है, धरती सूख गई है, पैसे पैसे को हम मोहताज हो गए हैं। पापा प्लीज, आप तो इतने अच्छे पंडित हो ना, आप क्यों नहीं प्रे करते कि बारिश हो जाए? अब पंडित जी तो बहुत पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा हाँ बेटा क्यों नहीं प्रे करूंगा। उन्होंने प्रे किया, बारिश हुई, इतनी बारिश के मतलब समझो सब बहुत बढ़िया हो गया। फिर 2 दिन बाद पंडित जी ने कहा कि बेटा मैं चलता हूँ, अब घर जाना है। और घर जा रहे थे तो रास्ते में छोटी बेटी का घर आया, उसके पास गए तो बड़ी से भी उसकी बुरी हालत थी। बोले बेटा तुम्हें क्या हो गया, इतने अच्छे घर में ब्याह किया था। शी सेज पापा हमने इतने पैसे लगा के इतनी अच्छी खिलौने बनाए थे और हमने उनको धूप में सूखने के लिए रखा था, इतनी बारिश हुई कि सारे ही पिघल गए। फिर बोली पापा आप तो बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, आप क्यों नहीं प्रे करते कि बारिश ना हो? अब पंडित जी हो गए कंफ्यूज। अगर बोलता हूँ बारिश हो तो छोटी को नुकसान होता है, बोलता हूँ बारिश ना हो तो बड़ी को नुकसान होता है। अब क्या करूं? मैं इनका पिता हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, मैं कोई फेवरिज्म नहीं कर सकता। क्या करूं क्या करूं? ये सोचते हुए उसने ऊपर देखा भगवान की तरफ और भगवान से कहा जैसे ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता, फेवरिज्म भी नहीं कर सकता, वैसे हम सब आपके बच्चे हैं भगवान। मैं आपसे सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे बच्चों के लिए वही करना जो उनके लिए अच्छा होगा। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि भगवान आपके लिए जो भी करते हैं वो हमेशा हमारे भले के लिए करते हैं। हमें उस टाइम नहीं नजर आता, मे बी बाद में नजर आएगा, पर हर सिचुएशन, हर नेगेटिव सिचुएशन में एक अच्छी सिचुएशन अंदर छिपी हुई होती है जो हमें नजर नहीं आती और बाद में नजर आती है। तब हम रियलाइज करते हैं कि ये ना होता तो वो ना होता, वो ना होता तो ये ना होता। So thank you very much for being there and listening to me. Thank you for having me over. Ma'am, are you there? Hello, ma'am. Are you there? Hello. Yes, Hi, ma'am, I'm there. Yeah. yes. So I think I'm in this nutshell in 1 hour. मैं जो भी बेस्ट दे सकती थी मैंने बच्चों को दिया। आई होप अगर वो उसमें से 10% भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे जिंदगी में, they would be able to move more towards positivity rather than negativity. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for enlightening our participants with your in-depth insights. Even I also do believe that everyone must have related their personal behavior with all your experiences and throughout that you narrated. Like one of the biggest example that you said that the moment you used to see yourself in the mirror that मैं छोटी हूँ, नाटी हूँ. Even I also, recalling myself कि मैं भी सुबह उठ के mirror में अपने आप को देख के क्या बोलती हूँ. So that is what, like, we all, every one of the participants must be relating themselves with all the thought process that you were sharing. Thank you so much, ma'am. Ma'am, there are many of the questions, like, since participants were very much attentive, and there are some of the questions they have asked in the chat box also, and some of them we have through mailers. Can I start with some few of them because of due to paucity of time? Sure. बोलिए ma'am. Thank you so much, ma'am. Yeah. Ma'am, the first question raised from one of the student was like, social isolation of students has affected their psychological well-being and mental health. How they can maintain positive attitude during such challenging situation? Okay. So first and foremost, ये जो वर्ड है ना सोशल डिस्टेंसिंग, बड़ा ही गलत शब्द है। सोशल डिस्टेंसिंग डजंट मीन सोशल डिस्टेंसिंग, इट्स एक्चुअली फिजिकल डिस्टेंसिंग। और बहुत से लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत नेगेटिव ले रहे हैं कि हमको किसी से बात नहीं करनी। अरे भाई, इफ यू आर फीलिंग लोनली in isolation, nobody has stopped you from picking up your phone and talk to someone. आपका आजकल तो it's become so very easy, आप फोन उठाएं, वीडियो चैट करें किसी के भी साथ। सो पहली चीज, ये सोशल आइसोलेशन वर्ड मत हटाओ, ये इट इज एक्चुअली फिजिकल डिस्टेंसिंग, नॉट सोशल डिस्टेंसिंग। सेकेंडली, जैसे मैंने आपसे कहा कि एनी टाइम यू फील दैट वैक्यूम, वो खालीपन आपको नजर आता है, तो आप बात भी कर चुके, सब कुछ कर चुके, अभी भी आपका जो मन है वो नहीं लग रहा है एंड यू फीलिंग लॉस्ट,
बेस्ट इज टू आइदर डेवलप अ हॉबी जो आपके पास हो सकती है. लेट मी टेल यू, नॉट टू से कि मैं ऐसा नहीं फील करती थी इनिशियली लॉक टाइम जब शुरू हुआ था, बिकॉज एज अ टीचर आई एम ऑल्सो सो यूज टू बीइंग विद पीपल, तो मुझे भी अकेला महसूस होता था. तो आई फाउंड दिस ब्यूटिफुल ऐप कॉल्ड, देयर आर टू एप्स, वन इज कॉल्ड सिम्यूल एंड वन इज सिंग अलोंग, ऐसा कुछ है. सो ये सिंगिंग की एप्स थी, मुझे गाना अच्छा लगता था, हर सिचुएशन का गाना होता है. सो आई स्टार्टेड सिंगिंग ऑन दोज एप्स, और उसमें कारियोके है, मैं गा गा के पागल हो गई, पता नहीं कितने मैं गाने गा चुकी हूँ. बट दैट वाज माय रिलीज, माय वे ऑफ ब्रिंगिंग आउट माय नेगेटिविटी. तो मैं सैड गाने भी गाती थी व्हेन आई वाज सैड, जब मैं अच्छी फील करती थी मैं हैप्पी गाने गाती थी. सो दैट इज अ वे. हाउ यू ऑक्यूपाई योर माइंड इज अप टू यू. आई टोल्ड यू अबाउट Udemy, that site. I did at least 20-30 certifications from them. मैं घर बैठ के अपने को अपग्रेड करती रही, सीखती रही, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर माइंड इन्वॉल्व. क्योंकि खाली माइंड रखोगे तो वो हमको खाने के लिए आ जाता है, नेगेटिव चीजें भरनी शुरू हो जाती हैं. तो उसको भर के रखो विथ समथिंग पॉजिटिव, और कुछ नहीं तो. Another thing is when we are in isolation we feel so low. हम घर के पर्दे नहीं खींचते हैं, हम कपड़े नहीं चेंज करते हैं. रूटीन अपना वापस वैसा ही करो जैसा पहले था. टाइम पे उठो, टाइम पे सो, पढ़ने के टाइम पढ़ो, फ्रेंड्स के टाइम फ्रेंड्स से बात करो, घूमने के टाइम घूमो बाहर जहाँ भी आप वॉक के लिए जाते हैं. बट हैव अ सेट रूटीन. And as I said, it is not social isolation. So don't take it otherwise. Just remember to stay positive. The only thing is to keep yourself occupied. कुछ ना कुछ करते रहिए जो जिसमें आपका मन लगता है. चाहे मैगजीन पढ़िए, चाहे बुक पढ़िए, चाहे गाना गाइए, पेंटिंग कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए, खुद को अपग्रेड कीजिए, डांस कीजिए. मैं मेरा इस उम्र में भी जाके आई थॉट आई मस्ट स्टार्ट लर्निंग बेली डांसिंग. तो मैंने यूट्यूब में बेली डांसिंग के ट्यूटोरियल्स देखने शुरू किए. सीख नहीं पाई, अभी भी मेरे को नहीं आता है, बट आई ट्राई बिकॉज आई कीप माई सेल्फ बिजी एंड आई फील हैप्पी. एक भी चीज आ जाती है आई फील हैप्पी एंड इलेटेड, बिकॉज एक अच्छी चीज आप करेंगे दैट विल मेक यू फील हैप्पी. यू नो दैट हैप्पीनेस हार्मोन जैसे सिक्रीट होगा यू विल फील हैप्पी. सो ओनली थिंग इज कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड. यस. And the next is, when there is so much negative around in terms of media coverage, social networking sites, how can we maintain positive thinking amidst all these situations? मैं आपको ऑलरेडी कह चुकी हूँ Yes. कि यू डोंट हैव टू बी ओवरलोडेड विद सो मच ऑफ मीडिया. क्योंकि मैं भी अभी जब ये SRS का केस शुरू हुआ था, तो मैं भी मतलब उसी केस को अलग अलग चैनल्स पे चेक करती थी कि शायद यहाँ से कुछ नया मिल जाए, यहाँ से कुछ नया मिल जाए. बट देन आई रियलाइज्ड आई वाज गेटिंग सो सक्ड इनटू इट कि रात को सोते टाइम भी मेरा दिल करता था कि मैं देखूं अब क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है. बट देन आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ. ऐसे ठीक है, जो भी होगा, देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकती इस चीज के बारे में. वॉट एवर इज हैपनिंग, जो भी मीडिया दिखा रहा है आपको, चाहे वो कोरोना की सिचुएशन हो या कोई भी सिचुएशन हो, मैं खुद तो कुछ नहीं कर सकती, बट मैं अपने को तो संभाल सकती हूँ ना. सो यू डू व्हाट यू कैन डू एंड लेट देम डू व्हाट, लेट द थिंग्स टेक ओवर एज दे विल हैपन. मेरे सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होने वाला. सो व्हाट आई कैन डू इज टेक चार्ज ऑफ माई सेल्फ. जरूर है, पता भी लगना चाहिए. सो एक टाइम फिक्स करो एंड फिक्स अप अ पर्टिकुलर पर्सन whom you can trust. एक ट्रस्ट वर्दी रिसोर्स को आप ट्रस्ट करो, दिन में एक बार चेक करो एंड दैट्स इट. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट 24/7. और ये आपके अपने हाथ में है, क्योंकि देखो आसपास तो चीजें चलती ही रहेंगी, दुनिया तो चलती रहेगी, आप दुनिया से अलग नहीं हो सकते. सो मीडिया चलता रहेगा. सो बट व्हाई गेट सक्ड इनटू इट. उस टाइम को कुछ बेटर चीज में यूटिलाइज करो रादर देन getting sucked into so much. So Facebook का, Instagram का, हर चीज का वक्त बांध दो. टाइम मैनेजमेंट, दैट्स व्हाट yesterday बापूजी हमारे जो थे वो भी यही कहते थे कि जीवन में टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट थिंग. हर चीज का वक्त बांध दो तो यू विल ऑलवेज बी हैप्पी. मीडिया का अपना टाइम बांध दो, 1 घंटा देखूंगा, इस 1 घंटे में सोशल नेटवर्किंग भी देखूंगा, ये भी देखूंगा, एंड दैट्स इट. एंड देन स्विच ऑफ योर फोन, स्विच इट ऑफ. थोड़े दिन आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर वो हैबिट बन जाएगी. Simple. Yes. Okay. Ma'am, this is somewhat related in our chat box also, that we often decides that we will think positive from now onwards. Like while taking the session, we also like started thinking like that only. But when things doesn't turn up well, we start thinking in different way. So how should we cope up with such situation?
देखो, अगर मेरे को अपनी हेल्थ बनानी है या मेरे को अपने मसल बनाने हैं, मैं रोज जिम जाऊंगी, राइट? एक दिन जिम जाने से तो नहीं बनने वाला. सो सिमिलरली, इफ यू वांट टू स्टे पॉजिटिव, यू हैव टू वर्क ऑन इट एवरी डे. रोज कोई पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि मैं जब कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स भी लेती हूँ तो आज सब लोग बोलते हैं यस 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 यस, एक महीने के बाद जाती हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा होता. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कंटिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है. सो स्टार्ट यूट्यूब में, देर आर सो मेनी पॉजिटिव वीडियोज. सो एक वीडियो बांध दो, मेरे को डेली मेरे को एक वीडियो डेली देखना है, या डेली मैंने कोई एक अच्छा काम करना है विच विल गिव मी हैप्पीनेस, या डेली मुझे ये चीज करनी. So if you every day, if you practice one point of positivity, तो आप जब भी गिरने लगोगे वो एक पॉइंट आपको संभालता चला जाएगा. मेरे साथ भी ऐसा होता है कि एनी टाइम आई फील लो, आई इमीडिएटली लुक अराउंड फॉर ऑल द गुड थिंग्स आई डू, एंड दैट गिव्स मी हैप्पीनेस कि चलो कोई नहीं. एंड ऑलवेज रिमेंबर, दिस टू शैल पास. सिचुएशन हमेशा एक सी नहीं रहती. लाइफ इज लाइक अ व्हील. सो व्हेन यू आर लो, रिमेंबर कि अब पॉजिटिविटी ऊपर ऊपर जाने ही वाला है, ये जो लाइफ का व्हील है. सो ओनली थिंग इज, जैसे आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ती है, डेली आपको खुद को पॉजिटिव रखने के लिए कोई मीडियम ढूंढना पड़ेगा. So what I do, I go to this YouTube and I just write positivity. तो डेली बहुत सारे लोग चीजें वहां डालते हैं. जस्ट वॉच वन थिंग, और कोई एक किसी की कही हुई एक बात, किसी का कहा हुआ एक शब्द कई बार हमारी जिंदगी बदल देता है. सो जस्ट कंटिन्यू टू डू इट. एक दिन पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू एवरी डे हैव अ पॉजिटिव डाइट. स्टार्ट योर डे विथ अ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव कैप्सूल. उठते ही, जैसे मैंने बोला, आप व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप मत देखिए, बट स्टार्ट योर डे विथ अ बी पॉजिटिव कैप्सूल. कोई पॉजिटिव चीज सोचिए, कोई पॉजिटिव बात कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए विच गिव्स यू हैप्पीनेस, एंड देन योर होल डे विल गो वेल. एंड एज आई सेड कि नीचे ऊपर तो चली रहेगी जिंदगी, अगर नीचे गई तो ऊपर भी जरूर आएगी. ऑलवेज रिमेंबर दैट. Last session, last question for today is: with online classes scheduled for entire day, we miss our friends, our fun time of real classroom teaching. This makes us feel lonely at times with no one to express. What are the suggestions on this? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हम सबके पास 24 घंटे हैं, और आप लोग ये कहते हैं कि आपका सारा वक्त अगर क्लासेस में गुजरता है, तो देन यू विल हैव टू अगेन डू लिटिल टाइम मैनेजमेंट. 1 घंटा अपने लिए निकालना पड़ेगा. कैसे? आधा घंटा जल्दी उठो, आधा घंटा देर से सो. आपके पास जिंदगी में 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है, और उस 1 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं. और ऐसा भी नहीं है कि सुबह से लेकर रात तक क्लासेस चलती हैं. There are times when you're having your lunch, you're having your dinner. Most of the time, whenever you find time, best person to talk to is your family. Family नहीं है, भाई बहन है जिनसे भी आप बात कर सको, और कोई नहीं है, और कोई ऐसी चीज आपके मन में चल रही, राइट इट डाउन, लिखो उसे. स्टार्ट राइटिंग. शरीर से बाहर निकालो. कीप राइटिंग so that at least it is not inside and it is killing you inside. किसी से बात कर सको, फैमिली से शेयर कर सको, डिनर करो. लेकिन कईयों बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के साथ खुल के बात करना, तभी उनको फ्रेंड्स की जरूरत होती है. तो वो जो आपका 1 घंटा है, एक टाइम बांध दीजिए एवरी डे. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग विद माय फ्रेंड्स. आई पोस्ट लंच, आई ऑलवेज आफ्टर वॉचिंग द मीडिया शीडिया, आई हैव अ लॉट ऑफ गॉसिप. तो वो मैं 1 घंटा अपने फ्रेंड्स के साथ बात करती हूँ, जो भी मैंने देखा उसको डिस्कस करती हूँ, अपने मन की बात बोलती हूँ, अपने कंसर्न्स बोलती हूँ, एंड देन आई स्विच ऑफ. उसके बाद आई एम स्विच्ड ऑफ, आई एम बैक टू माय वर्क. नेक्स्ट डे देन माय फ्रेंड्स आल्सो वेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, यू नो, क्योंकि वो भी मुझे कोई गॉसिप बताएंगे, मैं भी बताऊंगी. सो इट बिकम्स अ वेरी इंटरैक्टिव थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. सो इट्स ऑल अप टू यू बेटा, हाउ टू फाइंड टाइम. ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलता, यू हैव टू फाइंड योर टाइम. कोई ऐसा नहीं है, मोदी के पास भी उतना ही टाइम है, अमिताभ बच्चन के पास भी उतना टाइम है, मेरे पास भी उतना टाइम है, आपके पास भी उतना टाइम है. इट्स हाउ वी यूटिलाइज दैट टाइम. कैसे डिवाइड करूं कि मुझे अपने लिए वक्त निकले, दैट्स अप टू यू. Thank you so much, ma'am. On behalf of the whole GIPS family and our participants, I thank you, ma'am, for accepting the request at the last moment and sharing your valuable insights about positive thinking.
I hope after attending this session, many of us will change the way we think, the way we perceive in a more positive manner, which will have a tremendous positive impact on our daily lives. Thank you. With this note, I would like to thank every person involved here to make webinar successful in such an unprecedented situation. Thank you, ma'am, and thank you everyone for joining us. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you so much. Welcome.